Good morning, one and all. Now we'll begin with PDNF. Show that the following are equivalent formulas. तो हमको क्या check करना है? We need to check whether this left hand side of equivalence formula is equal to the right hand side or not. That means this P or P and Q is equivalent to this P value. So to prove that this is equal to this, I'll just take the left hand side. Now with left hand side, this P is taken as it is here. This or is taken as this, and this entire term P and Q is taken as P and Q over here. Okay, now with this again to add the Q term over here, P के साथ में Q का term missing है because sum of product के form में डालना है SOP. Okay, अगर मैं sum of product के form में डाल रही हूँ SOP के form में, तो यहाँ पर ये Q term missing है, so I have added this Q term. Q or negation of Q is being added over here. Okay, now with distributive law, P and Q is written over here. P and negation of Q is written over here, and this term is copied as it is. Okay, since it is being repeated twice, P and Q, so we'll copy this only once over here, and this term is copied over here as it is. Okay, now again I repeat, I'll just remove all these. What we do, we will show the equivalence of left hand side with the right hand side. So first of all, we'll take this left hand side term. With left hand side term, P or P and Q. This okay, so we'll take the left hand side P or P and Q. Okay, now with this P term we will add Q or negation of Q. With this is being added. Now I'll just copy the entire term from or to this or P and Q. Okay, now apply distributive law. P and Q in one bracket. Now this or is copied over here. P and negation of Q. P and negation of Q. And rest of the term or to P and Q is being copied over here. Now is it available in SOP form? That is sum of product form. Yes, it is available in SOP sum of product form. Now since this term is repeated, that is A or A is equal to A, so I'll just write it once only, P and Q or P and negation of Q. Okay, so we come across with the term P and Q or P and negation of Q, which is equal to P. How do you say it is equal to P? Suppose if I take right hand side, this right hand side, and apply Q and negation of Q. Oh sorry, it's not negation, it should be Q this P
this entire term is wrong. I'll just take it from this part. P, I'll just take P common over here. P or Q and negation of Q. This is P and or. This is P. P and T, and this is P. Okay. So how do you do this? This is the term which is given to us. P or P and Q. P or P and Q. So this P and Q or negation of Q is being added over here. ये और का टर्म एज इट इज रखा, P and negation of Q आ गया. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, P and Q. This is or term. This is or term. P and negation of Q is distributed. P is distributed among Q. P is distributed among negation of Q. और ये टर्म वैसे तो कॉपी कर लिया. अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ट्वाइस है. म्यूट योरसेल्फ, ये दो बार है. ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दो बार है, तो इसको एक ही बार लिखा एंड दिस इज बीइंग कॉपीड ओवर हियर. ओके. So this term and this term is repeated. I have copied it once and this second term is written over here. इसमें से दोनों में से P कॉमन निकाला, ये P और ये P कॉमन निकाला, तो हमारे पास में ये एंड यहाँ पर आया, Q और निगेशन ऑफ Q यहाँ पर आया. क्योंकि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रही हूँ, P एंड Q यहाँ पर आ जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q. ओके. और ये और पार्ट यहाँ पर आ गया. तो Q or negation of Q is this term is equal to true. So P and true is true. So we'll get P over here. Okay. So this equivalence can be proved like this. यहाँ पर मैंने sum of product के फॉर्म में canonical sum of product या फिर principal disjunctive nominal फॉर्म में कन्वर्ट किया पहले, और कन्वर्ट करने के बाद में P को कॉमन निकाला और फिर इसको अप्लाई किया. इवन अगर मैं इस प्रॉब्लम के अंदर ये देखती हूँ कि अगर मैं सपोज इफ आई अप्लाई P और P एंड P नेगेशन सॉरी P Q, तो हमारे पास में Q का टर्म आ जाता है, बट यहाँ राइट साइड में Q का टर्म मिसिंग है. तो Q का टर्म मिसिंग कैसे हो गया, यहाँ पर से Q एलिमिनेट कैसे हो गया, तो मैंने इस P के टर्म में, ये P के टर्म में ये Q का टर्म ऐड किया है. ये Q का टर्म हमने क्या ऐड किया, Q और नेगेशन ऑफ Q, बिकॉज दिस by adding this term with this does not make any difference. It is just like we have already talked about 2 plus 3 minus 3 means 2 only, plus 3 minus 3 मतलब 2 ही हुआ. तो मैंने इसके टर्म में हमने Q और negation of Q ऐड किया, because Q negation Q is always true. Q negation Q is always true. Okay. If I add this term with this, there is no difference in the ओरिजिनल प्रपोजिशन. इसके बाद में हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, P को हमने इस Q को दिया, इस P को हमने निगेशन ऑफ P के साथ में दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट किया. अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दो बार आ रहा है, तो हमने सिर्फ एक ही बार लिखा और उसके बाद ये टर्म को यहाँ पे लिखा. इन दोनों में से P कॉमन निकाला, फिर ये Q और निगेशन ऑफ Q, ये टर्म यहाँ पे लिखा. ये वाला जो टर्म है Q और negation Q is always true, so we left with only P. So this is how we have proved the equivalence. Now the next problem. Now this is the problem. Obtain the PDNF using the truth table. इस
टेबल से इसका पीडीएनएफ निकालना है। ट्रुथ टेबल से कैसे निकालते हैं? टिल नाउ वी हैव सीन यूजिंग द calculation manual work, applying the distributive law and adding this term if it is missing. तो min term terms को add करके हमने किया था. But using the distributive law, how do you do it? तो यहाँ पर you see that P, Q and R, there are 3 variables. So I have added 3 variables. So let's make a truth table for this. ये unit 1 में हमने truth table पढ़ा था. True, true, true. 2 raised to power of 3 means 8 combination. 2 raised to power of 3. 3 variables कौन कौन से हैं? P, Q and R. So this is equal to 8. Total 8 combination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now how do you write it? True, true, true. ये true की जगह यहाँ पर false आया. उसके बाद true, false, true. फिर ये दोनों false हुए. फिर ये false हुआ, ये दोनों true. ये false, ये true, ये false. False, false, true, and triple false. If you see this column, first column, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 बार true है और 4 बार false है. If you see the second column, 2 true, 2 false है, 2 true, 2 false है. Last column, true, false, true, false, true, false, true, false. This is how do you construct the truth table for the 3 variables. 3 variables के total combination कितने आएंगे? 8. 2 raised to power 3, it means 8. अगर 2 variables है तो 2 raised to power 4 is 2 raised to power of 2 is equal to 4. अगर 4 variables है तो 2 raised to power of 4 is equal to 16. तो 16 combinations आएंगे. ओके, तो यहाँ हमारे पास ये 8 कॉम्बिनेशन हो गए. तो सबसे पहला कॉलम क्या है? P एंड Q. तो P एंड Q निकाला. ये P एंड ये Q दोनों को एंड किया है. ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को हमने क्या किया? एंड. एंड मीन्स व्हाट? अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स. ये ट्रू, ये दोनों ट्रू है, ये ट्रू आ गया. ट्रू फॉल्स एंड किया, ये फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आया बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स. ट्रू फॉल्स, यू गेट फॉल्स ओवर हियर. फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स है, यहाँ फॉल्स आ गया. फॉल्स ट्रू, फॉल्स आ गया. फॉल्स फॉल्स, फॉल्स आ गया. Last false, false, false again. And means what? If both are true, then only the result is true. Then is negation of P, because negation of P is required in the second term. So negation of P, 1, 2, 3, 4 true है, तो 1, 2, 3, 4 false हो गया. ये 4 false है, तो यहाँ पर 4 true हो गया. negation of P, इस पूरी लाइन का negation किया है, उल्टा लिखा है. Okay. Now negation of P and R, ये वाला टर्म negation of P and R, ये वाला टर्म और ये टर्म दिया हमने, दोनों को क्या किया? एंड किया. negation of P and R. एंड में क्या होगा? अगर एक फॉल्स है तो दोनों ही फॉल्स हो जाएगा, पूरा ही फॉल्स हो जाएगा. दिस इज फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स. ट्रू फॉल्स, फिर से फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स है. ये दोनों ट्रू है. दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, सो यू गेट ट्रू ओवर हियर. ओके, दिस इज फॉल्स, सो फॉल्स. बोथ ट्रू, ये भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है, सो यू गेट ट्रू एज अ रिजल्ट. सो दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, सो यू गेट ओनली 2 true, 1 and 2. Then the last term, that is Q and R. Q and R. तो ये वाला Q, ये वाला Q और ये वाला R, इनका हमने क्या किया? एंड किया. अगेन दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया. ट्रू फॉल्स है, फॉल्स आ गया. फॉल्स ट्रू है, फॉल्स. बोथ फॉल्स, फॉल्स. बोथ ट्रू, ये दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू आ गया. दिस इज ट्रू फॉल्स, this is false. False true, false. Both false, last is false. Now this 1, this 2 and this term is 3. इन तीनों को क्या करना है? और करना है. इन तीनों को हमने और कर दिया तो हमारे पास में ओरिजिनल प्रपोजिशन है. तो ये ट्रू, ट्रू, ट्रू. अगर एक भी ट्रू है तो पूरा ट्रू आएगा, तो ये ट्रू आ गया. ये ट्रू है ना. नेक्स्ट में ये वाला ट्रू है तो ये ट्रू आ गया.
ये ये फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। यहाँ पर ये एक ट्रू आ गया, ये वाला एक ट्रू है, तो यहाँ पर हमारा ट्रू आ गया। फिर से यहाँ पर फॉल्स है। यहाँ पर देखते हैं लास्ट इसमें ये वाला सेकंड लास्ट इसमें ये ट्रू है, तो यहाँ पर हमारा ये ट्रू आ गया। एंड द लास्ट रो इज false, false, false. The result is false. So this is how we have constructed a truth table. The truth table construction we have already seen in the last unit. अब ये truth table हमने according to last unit we have constructed. Now how do you form the PDNF form? तो PDF form NF form करने के लिए हमको क्या करना है? We have to represent the preposition in a sum of product form. किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में। सो अब हम मिन टर्म्स देखेंगे। मिन टर्म्स में जहां जहां पर पी क्यू आर का जो वैल्यू दिया हुआ है और वो मिन टर्म्स में ट्रू आया है, वहां पे हमको उसका मिन टर्म लिखना है। जहां पर ये ट्रू आया है, देयर वी नीड टू राइट द मिन टर्म्स। ओके, सो पी क्यू आर यहाँ पर ट्रू आया है, पी क्यू सो मिन टर्म्स, विल सी द मिन टर्म्स। यहाँ पर ट्रू 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 ये तीन ट्रू है, तो अब हम क्या करेंगे? P एंड Q एंड R ये मिन टर्म फॉर्म किया प्रोडक्ट के फॉर्म में। फिर ये P Q और R, ये P Q R, R जो है वो फॉल्स है, R जो है ये फॉल्स है। इस फॉल्स को ट्रू कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसके आगे निगेशन लगा देती हूँ, तो अब ये ट्रू हो गया। अब तीनों को एंड करेंगे तो ये ट्रू टर्म आएगी, P एंड Q एंड निगेशन ऑफ R, तो तीनों टर्म्स जो है वो ट्रू हो गई, तो रिजल्ट ट्रू आ गया। ये वाला जो मिन टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ये जो ट्रू है, ये वाला ट्रू, इसका ये P वैल्यू जो है ये फॉल्स है, तो ये निगेशन ऑफ P आ गया। ये Q जो है वो ट्रू है, तो Q एज इट इज लिखा, एंड R जो है वो ट्रू है, तो R को एज इट इज लिखा। ये मिन टर्म फाइंड आउट की है, ये एंड के साथ। सिमिलरली इन द लास्ट केस P एंड Q बोथ आर फॉल्स, सो P negation of P, negation of Q, okay, and then this T that is R, इसको हमने एंड दिया, तो 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स हमारे पास निकली। इन 4 टर्म्स को हम एसओपी फॉर्म में लिखेंगे, P एंड Q एंड R प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का फॉर्म हो गया। नेक्स्ट सेकेंड टर्म P एंड Q एंड negation of R, third term negation of P and Q, okay, so this is third term negation of P and Q and R, and the last term negation P okay, am I audible? Yes, ma'am. Okay, the last term that is negation of P and negation of Q
and R. Okay, now we'll join with SOP, canonical sum of product. So these are the four terms. Okay, so what we have done, we have taken, we have made the truth table for this. जहाँ जहाँ ट्रू ट्रू आए हैं वहाँ का मिन टर्म्स लेंगे. मिन टर्म्स मतलब जो ट्रू ट्रू लिखे हुए उनको एज इट इज लिखना है. अगर ये टर्म फॉल्स है, जैसे ये फॉल्स है तो उसके आगे निगेशन बना दिया तो वो ट्रू हो जाएगा और एंड के साथ में ज्वाइन करना है. क्योंकि देखो अगर ये ट्रू और आर की वैल्यू फॉल्स है तो निगेशन ऑफ आर इज ट्रू. तो ये ट्रू 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 तो ट्रू आ गया हमारे पास में. सिमिलरली यहाँ पर फॉल्स है और ये दोनों ट्रू है तो पी के आगे निगेशन लगाया. सिमिलरली लास्ट टर्म में ये दोनों फॉल्स है पी क्यू तो पी और क्यू को निगेशन लगाया और आर ट्रू है तो इसको एज इट इज रखा. तो ये मिन टर्म्स कहलाती है. तो ये पहला मिन टर्म, सेकेंड मिन टर्म, थर्ड मिन टर्म एंड फोर्थ मिन टर्म, तीनों चारों मिन टर्म्स को लिख लिया और चारों को और के साथ ज्वाइन किया. तो ये कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट दैट इज प्रिंसिपल डीएनएफ फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया. क्वेश्चन क्या था, ऑब्टेन पीडीएनएफ यूजिंग द ट्रुथ टेबल. तो पहले क्या करना है, ये जो प्रपोजिशन दिया हुआ है उसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. जो हमारे पास में रिजल्ट आया फाइनल, देयर यू सी दैट ट्रुथ वैल्यूज, जहां जहां ट्रुथ वैल्यूज है उसका मिन टर्म्स लिखना है और उनको सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ओके, so today's lecture, I'm ending this today's lecture.